Welcome children, good morning. Let's start today with a new topic of social studies, and that's your chapter 21, social change. Now the word itself will tell you the meaning of this social change, that is a change that occurs in the social structure or the change that occurs in the society. Generation after generation we see lot many changes, and the changes that we also see in our social institutions is called social change. Now your institution, we will not take it as some building or some school, college, institutions, etc. The social institution means the way of lifestyle, the living standard, and the food habits, the many more things that we see in a society that keeps on changing every after few years. That's termed as social change. Along with it, we also see the changes that take place in the composition of society, and its working is called social change. Now in simple word, let me tell you that in ancient time, like very small and very simple example, you also must be knowing about it, that how in ancient time people used to live their life. Today it's very much different in modern times. Like joint family existed in ancient time. Even today, yes, joint family do exist. But it's like you can just count on your fingertips, very few. Whereas nuclear family, you can say, are many, and there are many reasons behind it. But this is what we see, that the society keeps on changing after a few years, and it's for good, of course, many a times. Yes, it has its some disadvantages too. Like nuclear family, I would say, has advantages, disadvantages. Similarly, joint family has its own advantages and disadvantages. Now, the social changes have been seen in social relations, family arrangement, as I told you just now, joint family and nuclear family. मैरिज अरेंजमेंट, पहले जैसे शादी होती थी गांव में, किस तरह से लोगों की शादी होती, they used to enjoy for days together before the actual day of marriage. And today, yes, it has become very compact, and maybe you can say just a day before, 2 days before, people are invited at the Sangeet Sandhya, and then there is some before that there is engagement ceremony, and the day of marriage, or ek din agar bada diya to reception. But that's very much like different from how the marriage arrangement used to take place in the ancient time, right? And you could even see that the family arrangement also different, lifestyle of the people is different. There is change we have seen in the culture and art, literature, music. Yes, you can compare that with the ancient time music and today's music. The dance forms have changed. All these changes we see in our society, that is in our surrounding, is more so because of westernization that we have entered into, globalization, yes, and urbanization. Now you must be knowing what's westernization. That is for centuries, people from the West had been ruling us one after the other. There's a Portuguese, then French and Britishers and Dutch, and too many people. Now when they came over here, just like our first chapter that we did in history, how they gave us some part of their lifestyle, right? When they went from here, they left it over here because they stayed here for maybe for 40 years, 50 years, 100 years. तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमने हमारे कल्चर में भी ऐड कर दी, राइट? तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से भी ये हुआ है. और आज वेस्टर्नाइजेशन से, like from the western countries, we have adopted so many things in our life. Like you can say English education जो ब्रिटिशर छोड़ के गए, तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. एंड यू कैन से द ड्रेस, yes, the dress sense that we have accepted, like the shirts and pants and t-shirts and sport shoes, and you can add to it many more things.
शूज़ एंड कपड़ों के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, लाइक म्यूज़िक, यस यू कैन से द डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस जो एक इंडियन हमारा रूट में है, हाँ इंडियन रूट में है, तो उसके सामने हमने वेस्टर्न डांस भी अडॉप्ट किए हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है, राइट। देन येस, मैनी विलेजेस वर कन्वर्टेड इनटू टाउन एंड स्लोली इनटू सिटीज़, डेवलप्ड सिटीज़। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दी है जो पहले के ज़माने में शायद नहीं थी। तो सोसाइटी ओवरऑल इज चेंजिंग, द वे वी कैरी ऑन आवर प्रोफेशन, आवर बिजनेस एंड फूड हैबिट्स येस हैव चेंज्ड। जैसे मैकडोनल्ड्स ने एंट्री ले लिया हमारी लाइफ में, पिज्ज़ा हाउसेज हैव टेकन एंट्री इन आवर लाइफ, and all these things were not there in ancient time. Due to this, people have become used to, or they have been acquainted to with each other's culture. जैसे आर्यन द्रविडियंस आए तो उनका कल्चर हमने अडॉप्ट किया, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने कहा पोर्टुगीज एंड डच एंड ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, वो जो भी यहाँ पे अपनी सिस्टम छोड़ के गए थे तो हमने काफ़ी कुछ अडॉप्ट किया और मिक्सअप किया विद द इंडियन कल्चर। Physical objects, means of luxury, yes, use of modern implements, tools, facilities that we use in our daily life have reached today up till the villages, that is rural area. तो जो modern equipments, the modern lifestyle, means of luxuries, बहुत सारी चीज़ें जो हमने adopt की है एक developed cities में, वो कहीं ना कहीं विलेज तक भी पहुँच चुका है। Change has taken place in the style of houses of people. तुम खुद के घर को देख लो तो पुराने ज़माने के जो घर और आज के जो हम जो रह रहे हैं, राइट, स्टाइल ऑफ हाउसेज हैव चेंज एंड बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन और सब कुछ काफ़ी कुछ बदल चुका है। जो मेथड्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो काफ़ी कुछ अलग है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिजिकल चेंजेस इन सोसाइटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव। हाँ, तो इसके एडवांटेजेस भी तो हैं कि लाइफ काफ़ी आसान बनती जा रही है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड लाइफस्टाइल हमारी बेटर होती जा रही है एंड इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर इज़ वेरी क्लियर इन आवर लाइफस्टाइल। जैसे पहले ज़मीन पे बैठ के एक यू यूज्ड टू फोल्ड योर लेग्स, राइट, क्रॉस द लेग्स, सिट डाउन एंड हैव योर लंच, डिनर एंड ऑल। और आज dining table, chair, and we have lot many other facilities that we have added in our lifestyle. तो food habits भी बदल चुकी है, खाना खाने की जो रीत है जहाँ पे बैठ के हम खाते हैं वो बदल चुका है। पहले नीचे लेट के सोते थे, आज डबल बेड के बिना नींद नहीं आती। पहले एसीज नहीं थे, आई डोंट थिंक सो पीपल वर इवन यूजिंग फैंस, यस, छत पे सो जाते, फ्रेश एयर, नेचुरल एयर, आई वुड से नेचुरल हवा उनको मिलती थी एंड दे यूज टू रिमेन हेल्दी एंड ऑल एंड हैप्पी। टुडे वी मेक मोर यूज़ ऑफ लग्जरीज टू गेट अ साउंड स्लीप, राइट। तो ये लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ चुका है। नाउ लेट्स सी अनदर टॉपिक, दैट्स जनरल नॉलेज ऑफ लॉज एंड इट्स नीड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट, हमारे कंट्री में आज भी लिटरेसी रेट अगर तुम कंपेयर करो विद दी वेस्टर्न कंट्रीज, यस, हमारे कंट्री में काफ़ी लो है लिटरेसी रेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ लिटरेसी रेट थी 18.88 आई वुड से परसेंटेज, मतलब कि वो हर 100 में अगर हम गिनती करें तो हर 100 के ग्रुप में देखो तो 18 या 19 लोग लिटरेट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज समय 1947 के बाद जब काउंटिंग हुई तो हमने ये देखा। उसी टाइम पे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर करें इन 1940s 1950s तो वहाँ पे 100% लिटरेसी। तो दिस इज द गैप दैट इवन टुडे वी कुडंट फिल अप, राइट। जैसे इफ़ यू वुड से टुडे हमारे यहाँ मोर देन 70% लिटरेसी रेट है, फिर भी हम कहे ओ वी हैव मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस, 18 to 70+ literacy rate have increased. But when you compare the same with the western countries, तो आज भी हम 70 या 75 के बीच में अटके हैं। They were
100% literate somewhere centuries back, right? Centuries back. So this is a vast difference that you could see. और इसी लो लिटरेसी की वजह से प्लस लैक ऑफ नॉलेज, लोग अगर लिटरेट भी हैं तो इग्नोरेंट हैं. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, क्योंकि इग्नोरेंट वर्ड कई जगह पे आएगा. इग्नोरेंट मीन्स कि आई एम ए लिटरेट पर्सन बट मे बी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल से फुटबॉल. तो मैं अगर फुटबॉल की मैच देख भी रही हूँ टीवी पे, आई जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस, आई डोंट नो मच अबाउट इट. इट मीन्स दैट डजंट मीन आई एम इलिटरेट. आई एम लिटरेट बट आई एम इग्नोरेंट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो ये लैक ऑफ नॉलेज का होना कई बार कई सब्जेक्ट्स का. एंड तो कई लोग लिटरेट हैं लेकिन इग्नोरेंट है अबाउट द लॉज ऑफ आवर कंट्री. दैट्स वेरी रॉन्ग. All should have the knowledge of it. And yes, because of lack of understanding also among the people thus because of these three factors, that is low literacy rate, कई बार नॉलेज नहीं होता पूरा लॉस के बारे में या क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, एंड समटाइम अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम होती है लोगों में. तो पीपल लैक इंफॉर्मेशन अबाउट डे टू डे लॉज इन आवर कंट्री. इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती ही नहीं, या तो they are lazy to collect the information, or they are least bothered, or maybe they are semi-literate or illiterate. As the people do not have knowledge about law, they break the law. अब जब कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हेलमेट पहनना एक बहुत ही कंपल्शन है, राइट? पता ही नहीं कि लॉ है, तो नेचुरली यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट लॉ. तुम बिना हेलमेट के निकल पड़ोगे. बट डू यू थिंक कि क्योंकि तुम्हें लॉ के बारे में नहीं पता और अगर पकड़े जाते हो तो क्या तुम पुलिस को अगर ये कहते हो दैट ओ आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था, ये लॉ कब बना कि हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है या सीट बेल्ट कार में ड्राइविंग सीट वाले के लिए ज़रूरी है, राइट? तो विल यू बी फॉरगिवन? नो, यू विल नॉट बी फॉरगिवन. Lawbreaker will be punished whether he knows about the law or whether he doesn't know, right? They can't be forgiven from punishment or conviction. You can use any one word. So it has become very important, I would say necessary, to give basic understanding and information to every citizen. तो अब वो citizen literate हो, illiterate हो, semi-literate हो, whatever, उसे basic knowledge तो होना ही चाहिए about the laws of our country. As a citizen of our country. Now, why is it necessary to have this general knowledge about law? Right? Let's see. It is very important to have general knowledge, information and understanding of law. Why? तो ये points तुम्हें learn by heart तो करने ही होंगे. Very important. So first, people are saved from doing crime and thus saved from punishment, कन्विक्शन एट्सेट्रा. मतलब तुम पे केस नहीं चलेगा फिर अगर पकड़े भी गए, पकड़े ही नहीं जाओगे पहले तो, क्योंकि तुम वो क्राइम नहीं करोगे. और क्राइम क्यों नहीं करोगे? बिकॉज यू नो अबाउट ऑल दोज लॉज एंड ऑल, यू नो, यू हैव दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग. तो अगर बेसिक नॉलेज है, यू आर इन्फॉर्म्ड, you always stay update about the laws, you have a good understanding of laws of a country, तो it will save the people from doing crime. तो फिर punishment भी नहीं मिलेगी. Next, they can get guidance regarding exploitation. It's a wrong print in your textbook, so check it out. They can get guidance regarding exploitation, LOI, and legal steps which could be taken against injustice. अगर लॉज के बारे में पता हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर चीट किए गए तुम किसी से, कोई तुम्हें चीट कर रहा है, कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज यू नो इट्स रॉन्ग, राइट. तो यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ताकि तुम एक्सप्लॉइट ना हो, तुम चीट ना किए जाओ बाय द पीपल इन द मार्केट. इट कुड बी एनी मार्केट. नेक्स्ट, दे कैन एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स that protect individual interest and may
progress, right? Flourish himself means then you can develop yourself. तो अगर सारे rights पता हो तो you must be knowing that we are given how many rights by our country? 6 fundamental rights. अब उसमें जो 6th right है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहली बात तो है अगर इम्पोर्टेंट नहीं होती तो देते ही नहीं. तो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए राइट्स दी जाती है कि हम एक्सप्लॉइट ना हो, हमें प्रोटेक्शन मिले, हम प्रोग्रेस करें, हम कंट्री के इक्वल सिटीजन की तरह हमें ट्रीट किया जाए. सो ईच वन वेदर रिच और पुअर, ब्लैक और वाइट, and literate, illiterate, or all are given this 6 fundamental rights and all are treated equally by the country government. Now, the 6th right is the constitutional right. Now that you must have already done in detail in 9th standard. Yes, we had done. और ये 6th right हमें ये समझाता है कि first 5 rights order में जो दी हैं वो first 5 rights में से अगर तुम्हें कोई भी एक ना मिले तो 6th राइट का सपोर्ट लेके यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द कोर्ट विल प्रोटेक्ट यू, राइट, एंड पनिश द गिल्टी. लेकिन अगर ये फर्स्ट 5 राइट्स मिल जाए लेकिन 6th राइट ही ना मिले तो प्रॉब्लम है. क्योंकि फर्स्ट 5 राइट्स में से अगर एक राइट भी नहीं मिली सपोज, तो तुम कहाँ जाओगे कंप्लेन करने? क्योंकि 6th राइट ही तो सहारा है जिसको हाथ में लेके तुम जाओगे टिल द कोर्ट. लेकिन 6th राइट ही गायब है तो फर्स्ट 5 राइट्स इक्वल टू 0, राइट, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता. नाउ 4th, वी कैन बिकम, दैट इज people can become informed about various laws, that is legal provisions. Provision मतलब फिर से एग्जाम्पल चलो दे ही देते हैं, बिकॉज इन SS you are going to go through a very long journey of examples from my side, and so that I think personally SS becomes easy for you to understand, and I try my level best to make it a bit more interesting, right? So प्रोविजन मतलब क्या? तो जब तुम घर के बाहर जाते हो तो तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारी शॉप्स होगी, लाइक ग्रेनरी प्रोविजन स्टोर, मेडिकल प्रोविजन स्टोर. मतलब कि अगर तुम ग्रेनरी प्रोविजन स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे ये कहोगे कि भाई हमें कफ सिरप दे दो या मेटासिन दे दो, या मेडिकल प्रोविजन स्टोर में जाके तुम टी एंड राइस एंड व्हीट एंड घी और तेल नहीं खरीदोगे बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड यू. तो कई चीज़ें एक अलग अलग जगह पे ही प्रोवाइड होती है. तो प्रोविजन मतलब टू प्रोवाइड, राइट. तो गवर्नमेंट भी इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है. तो ये सारी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट वेरियस लॉज दैट द गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग, that have been made for our protection and development, that is flourishment. Then अब अगर हमें हमारे कंट्री के लॉज के बारे में सब पता है, we keep ourselves updated, that is informed, then we as Indian citizen will be more loyal towards our country, our society, right? वो लॉयल्टी बढ़ जाएगी हमारे स्टेट, कंट्री और सोसाइटी के लिए. So that he may then contribute in the formation of society. और जितने ज़्यादा हम लॉयल बनेंगे naturally, we will work hard and in a better way for the development of our country, and then we will not be deprived of the right as a citizen and will be able to perform our duties. और जब हम informed रहेंगे, we remain more loyal to our country or our society or state. तो अब लॉज के बारे में पता होगा तुम्हें, तो तुम्हें राइट्स के बारे में भी सब पता होगा. तो अब सारी राइट्स तुम्हें पता है कौन कौन सी तुम्हें मिल रही है बिकॉज यू आर वेल इन्फॉर्म. तो अगर कोई एक राइट नहीं मिल रही, यू कैन गो एंड फाइट फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और फिर ड्यूटीज़ के बारे में भी हमें पता है. तो हम एज अ गुड इंडियन सिटीजन एंड अ लॉयल इंडियन सिटीजन वी विल परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. If everybody has proper knowledge of laws, they can lead a life of esteem and pride. Esteem मतलब raised,
एक अच्छी लाइफ हम जी पाएंगे. रिस्पेक्ट, yes, you can say a life of respect would be easy word for you. So if everybody has proper knowledge of laws, they can lead a life of respect and pride. Thus it is very important to have knowledge and understanding of laws. तो for your 3 marker, अगर 2 मार्कर के लिए पूछा जाए तब भी ये 7 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं. एंड द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन दिस फॉर्म. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल to have knowledge and understanding of various laws? Clear? Now, first let's know about the rights of citizen. और एक interesting chapter है economics में. Yes, it will be a long journey with that chapter of yours and mine, but it's too interesting. जहाँ पे हम rights और duties of a कस्टमर के बारे में लर्न करेंगे. इज गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी विद दैट चैप्टर, क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ यू एंड मी, योर फैमिली एंड मी एंड माई फैमिली एंड द मार्केट एंड शॉपिंग एंड वॉट नॉट. तो हम ले आएंगे उस चैप्टर में मॉल्स एंड थिएटर्स एंड शॉप्स एंड शॉपिंग, काफ़ी चीज़ें ले आएंगे. तो वो राइट्स अलग होगी एज अ कंज्यूमर इन द मार्केट. और यहाँ पे हम जो लर्न कर रहे हैं वो है सिविक्स, जहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं अबाउट द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, राइट. तो नन ऑफ द कॉमन मैन कैन मेक हिज प्रोग्रेस इन बेस्ट वे इन टुडेज सोशल कंडीशन. देखो, कोई भी आदमी अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा सोसाइटी में अगर उसे अपनी राइट्स ना मिले. तो राइट्स सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है. वो एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का. सो राइट्स आर इंडिस्पेंसिबल फीचर ऑफ सिटीजनशिप. इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ. इन इस चार्टर ऑफ राइट्स, यूनाइटेड नेशन हैज एनश्राइंड. एनश्राइंड मीन्स इट हैज गिवन अस, इट हैज गिफ्टेड अस ह्यूमन राइट्स टू ऑल द ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो यूएन में भी चार्टर में दैट इज you can take it as a preamble of our constitution. तो वैसे यूएन के चार्टर में भी लिखे हुए हैं राइट्स जो हर एक ह्यूमन बीइंग को दिए गए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, दैट इज गर्ल और अ बॉय, ओल्ड और यंग, ब्लैक और वाइट, एंड लिटरेट इलिटरेट, रिच पुअर, all are treated equally on the same platform. It has stated that all the countries of the world should try, that all the citizens of the nation get the rights simply and easily. तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ये लिखा हुआ है कि हर एक कंट्री अपने हर एक सिटीज़न को ये सारे ह्यूमन राइट्स दे ताकि वो सारे ह्यूमन बीइंग डेवलप हो, प्रोग्रेस करें, हैप्पीली एंड हेल्दीली दे लिव देयर लाइफ. एंड व्हेन अ पर्सन इज हैप्पी एंड हेल्दी बाय बॉडी एंड माइंड, naturally he will become a very important part of the development of his country. And Indian Constitution also has given 6 fundamental rights to all the Indian citizens without any discrimination, which we have already done in 9th standard. We will revise it over here. Now revise का मतलब होगा that डिटेल में जो 9th में किया था उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे. It's just review. एक हल्की सी एक झलक ले लेते हैं in fundamental rights की. So let's see in short over here fundamental rights of citizen. Yes, but for 2 marker you will have to learn these 6 rights. Right to equality, मतलब all will be treated equally without any discrimination. Right to freedom, right against exploitation. अगर exploit हुए तो you can go to the court of law with the proof and the culprit will be punished. Right to religious freedom, cultural and educational right. सॉरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो ये सारे राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंडियन सिटीजन. और ये जो मैंने आगे बताया था 6th राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये राइट ही हम गायब कर दें, 6th राइट कैंसिल कर देते हैं, तो इन राइट्स की वैल्यू इक्वल टू बिग 0. क्लियर? तो हम ये करते हैं, इसे कट कर दें तो अपने आप ये सारी कट हो जाएगी. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस राइट इज वेरी मच, राइट.
इसके बिना ये सब बेकार. So now let's see. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and very, very, very important is this constitutional right. Right? Now let's see over here. Children between 6 and 16 have the fundamental right to free education if they cannot afford it. What is important over here? You can afford. तो तुम फाइट नहीं करोगे कि भाई मुझे तो फ्री एजुकेशन नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ तो हजारों रुपए फीस में देने पड़ रहे हैं. सॉरी, वी कैन अफोर्ड, राइट? यू कैन अफोर्ड thousands of rupees. But there are children living in slum regions and many families who are economically very weak, जो पॉवर्टी लाइन पे है या बिलो पॉवर्टी लाइन. तो वहाँ पे तुम देखोगे कि इन बच्चों के लिए, इस एज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू लर्न कि उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना ही चाहिए. Now, if any of the state or nation violates this rights, अगर किसी को ये राइट ना मिले कोई स्टेट में या कंट्री में, then in order to protect his constitutional right, citizen has the right to go and get justice from either High Court or Supreme Court. Now, citizens have got this right under the provision in right to constitutional remedy. अब ये right कहाँ से मिली है? With the support of this sixth right. So this sixth right with which we go and fight in this court, उस sixth right को हम नाम दे रहे हैं soul of constitution. Learn it for 1 mark. It is the duty of judiciary, that is the judge, to protect the fundamental rights of the citizen. अब ये बहुत ही important है कि हमारी सारी fundamental rights कौन protect करेगा? Judiciary, right? And it should provide simple, cheap, speedy and appealing judgment. जो सबको अपील कर जाए, जो सब अग्री करें, right? तो इतने सिंपल और स्पीडी जजमेंट मिलना चाहिए. इट शुड नॉट टेक years and years, राइट, एज इट यूजुअली हैपन्स. तो इसके लिए भी काफ़ी सारी सिस्टम हमारे गवर्नमेंट ने पास की है, लाइक लोक अदालत एंड ऑल. स्पीडी जजमेंट, चीप जजमेंट मतलब बहुत कम पैसे में या कई बार मुफ्त में भी उनका केस वो लड़ सकते हैं. दे गेट अ लॉयर फॉर इट बाय द गवर्नमेंट. नाउ, rights of a child, very interesting. Yes, especially now this will not be for only a few category कि भाई इस कैटेगरी के बच्चों को ये राइट्स मिलेगी. दिस राइट्स ऑफ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द चिल्ड्रन. सो राइट्स ऑफ चाइल्ड, yes, very interesting. Children are the least protected section in a society. Now I would say very, very, very important your, I would say 1 marker, that who are the most, I would say least, sorry, the least protected section in the society, children, 1 marker. Now, progress of any country depends on the overall development of children living in it. Again, very important. कोई भी कंट्री की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है? एक बच्चे के डेवलपमेंट पे. अगर बच्चा ही पढ़ाई ना करे, आधी अधूरी पढ़ाई करके स्कूल में से बाहर आ जाए, मतलब कि ड्रॉप आउट ले ले, या बहुत लंबी वाली पढ़ाई ना करे, 10-12 साल 15 साल की, दैट इज आफ्टर 10th स्टिल 8 to 10 years मोर, मतलब कि टिल द एज ऑफ 25, 26, समटाइम 28. तो एक अच्छी सी पढ़ाई अगर बच्चों को ना मिले तो वो बच्चा डेवलप होगा ही नहीं. आई वुड से येस, बाय फिजिकली हो सकता है, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक सो. जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे चाहिए वैसे बच्चे डेवलपमेंट नहीं दिखाई देंगे. एंड सो प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अब ओवरऑल डेवलपमेंट, सी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड ओवरऑल. इसका मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हर एक एरिया में मिलना चाहिए बच्चे को. इफ द चाइल्ड विल बी एजुकेटेड, प्रोटेक्टेड
एंड राइटियस और वर्चुअस, मतलब एक बच्चा बहुत ही संस्कारी हो, एजुकेटेड हो, प्रोटेक्टेड हो, और बहुत ही फुल ऑफ डिसिप्लिन, मैनर्स, उसे हम एक अच्छा सिटीजन बनाएं, देन ही कैन बिकम अ गुड सिटीजन एंड ही कैन ऐड टू द डेवलपमेंट नॉट ओनली ऑफ हिज फैमिली। तो ऐसे बच्चे सिर्फ अपनी फैमिली को डेवलप नहीं करेंगे, साथ साथ अपनी सोसाइटी, नेशन, मतलब अपनी कंट्री को भी डेवलप करेंगे। दिस टाइप ऑफ सिटीजन विल बी ए ब्लेसिंग फॉर द कंट्री। तो ऐसे सिटीजन हमारी कंट्री के लिए ब्लेसिंग है, नहीं कि पान बीड़ी के गले पे खड़े रह गए या आने जाने वाले रास्ते पे लोगों को परेशान करना, लूट मचाना, लोगों की मजाक उड़ाना या रिस्पेक्ट नहीं देना, खुद को ही ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट समझना, पढ़ाई को वैल्यू नहीं देना। देयर आर सच चिल्ड्रन टू ऑन द प्लैनेट। तो ये बच्चे, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, आई वुड से दे वुड नॉट डेवलप द कंट्री, दे वुड पुल डाउन द कंट्री। तो वी नीड टुडे, नॉट टुडे, आई वुड से दिस इज इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन द प्लैनेट एग्जिस्टेड, राइट, अर्थ एग्जिस्टेड। तो ऐसे बच्चे ही कंट्री को डेवलप करेंगे जो मैनर्स, डिसिप्लिन, फिजिकल डेवलपमेंट एंड I gave the most greatest importance to education, right? Education. और उसके साथ yes, I give equal importance to, as I said, discipline, manners, respect for others. It could be a respect for an animal, it could be a respect for the younger to you or elders to you. ये एक गलत चीज़ है जो हमने सुनी है कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो, बड़ों को तो देना ही है, but I always insist, I always tell my children when we used to come for face-to-face live lectures, I always used to say, respect elders, नहीं, सिर्फ नहीं, उनके साथ साथ, एल्डर्स के साथ हमें रिस्पेक्ट करना है हर एक चीज़ को जो हमारे आसपास है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यू रिस्पेक्ट योर बुक्स, you respect your wardrobe, you respect your plant, you respect the animals, you respect the young people, that is जो तुमसे भी छोटे हैं उन्हें भी इक्वल रिस्पेक्ट दो। देन आई वुड से कि पढ़ाई में 90 आई डोंट कंसिडर इज एज द बेस्ट, अगर बाकी की चीज़ें माइनस हो, टूगेदर एवरीथिंग, सब कुछ है और 70% है, आई वुड से दैट इज ग्रेट। बट 90% एंड बाकी माइनस, आई वुड से इट इज़ 0। तो हर एक चीज़ में हमें इक्वालिटी यहाँ पे भी रखनी है डेवलपमेंट में। दैट सिटीजन इज, आई वुड से, वुड ब्रिंग ग्रेट डेवलपमेंट फॉर द कंट्री एंड दैट सिटीजन इज अ ब्लेसिंग फॉर द कंट्री। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर आर द प्री कंडीशन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड चाइल्ड इज लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। तो उसकी अपब्रिंगिंग, उसको सपोर्ट देना है, उसको अच्छे से बड़ा करना है, नहीं कि मार झोड़ के हे भाई 90 क्यों नहीं लाया, अरे इसमें 2 मार्क क्यों निकल गए तुम्हारे, उसके क्यों तुमसे 2 ज़्यादा है, क्यों उससे तुम्हारा 1% कम आया। दिस कंपैरिजन्स एंड ऑल दिस थिंग्स विल पुल डाउन द चाइल्ड, और दिस इज नॉट द वे how we can support the child. I would always say no comparison. I would even try to tell you, you compare yourself with yourself. लास्ट ईयर का रिजल्ट देखो और इस साल का देखो, आई वुड से येस, इतनी पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5-6 घंटे कर लो, 4 घंटे करो, बट विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन। पूरे दिन मेहनत से शायद 0 रिजल्ट, 4 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन वाली पढ़ाई विल टेक यू टू द टॉप। तो कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। कल से आज ज़्यादा पढ़ाई और आज से टुमारो ज़्यादा पढ़ाई। पहले रिजल्ट से अब का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए और आज के रिजल्ट से द नेक्स्ट रिजल्ट शुड बी बेस्ट। तो वैसे आगे बढ़ते जाओ, बट इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर नेबर और विथ योर फ्रेंड, तो तुम्हारे खुद का प्रोग्रेस स्टॉप हो जाएगा। सो यू focus on your own self. If I start comparing myself with the others outside in the society, तो naturally 100% मेरा progress stop हो जाएगा. But I will be always happy and very balanced. I consider happiness as the most
एंड हेल्दीनेस। तो ये चीज़ें मुझे मिलेगी अगर मैं अपने आप को कंपेयर ना करूं। एंड आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विथ एनीवन। जिनको जो करना है करे। आई सी कि कल से ज़्यादा काम, थोड़ा सा भी ज़्यादा मैं आज तुम्हें दूं या घर में थोड़ा और सपोर्टिव रहूं, और आज से टुमारो थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यू मूव अप। यू कैन जंप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू 10th फ्लोर। स्टेप से ऊपर जाना होगा। हाँ, लिफ्ट से जाओगे। अगर मैं क्लास में होती तो यही जवाब मिलता मुझे कि मैम वी कुड गो बाय लिफ्ट, बट वी आर जस्ट सेइंग कि लिफ्ट में भी विद इन अ सेकेंड, आई डोंट थिंक सो कि ग्राउंड फ्लोर 1 सेकेंड में तुम ऊपर पहुंच गए। यू गो स्टेप बाय स्टेप कि वो लिफ्ट तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्टली टॉप फ्लोर पे नहीं डाल देती। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो स्टेप वाइज हम ऊपर जा रहे हैं, राइट। एंड सो वंस अगेन, चाइल्ड इज लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। तो उसकी अपब्रिंगिंग, सपोर्ट, डेवलपमेंट में हमें बहुत ध्यान रखना है। और विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, ये पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि बच्चे अच्छे से बड़े हो रहे हैं। Our primary duty is to take care of the child, that he is physically healthy and able, mentally cheerful, that is happy. His moral abilities are developed, that is, he should be honest and disciplined, full of manners. He becomes a healthy, sensible and responsible citizen by promotion of physical values. So for today we stop over here, and with more interesting examples, once again we meet in the next lecture. Thank you so much. Take care. Be with your family. Love them a lot. Be supportive to your family. Stay safe. Thank you so much once again. Take care.